Hi everyone, welcome to the next session of Skill Builder course, right? Uh, we have done 3-4 classes now. First was the basic introduction about the quant section in CAT, right? Second was some logical based quant questions, right? And the third one was uh, Vedic maths. And in the last class, we have done basics of percentages. So if you have not watched that videos, please watch it, right? That will give you a basic idea about the course structure as well as the basics of the quant, right? Now before watching this particular class, if you have not watched percentage one, so first watch that and then come back to this, because we have done most of the basics part there. So if that part is not clear, this might be a problem for you, correct? Not necessary, but yeah, you can face some difficulties because I will be using some of the shortcuts which we have used there, correct? Calculation shortcuts and all. All right. Okay, so we'll be doing successive percentage change today, correct? And this is my brief introduction. I'm academic head of an academy, CAT, 18 years of experience. बाकी आप पढ़ लेना. And this is my Telegram channel. You can join it for more updates. All right, chaliye. So in the last class I have given you some assignment, right? So 4 questions I have given you to try. If you not tried it, please try this once, right? And then come back to the video again. All right, so now I'll be discussing the solution of that, right? These kind of shortcuts we have done in the previous classes, correct? Now the first one was very easy. Do you remember that we know that 1 upon 11 is 9.09, correct? So this is nothing but triple of that. So basically 27.27 is nothing but 3 by 11. Sorry, 3 by 11 of 3245. That's it. That is it you need to do. Clear? आंसर तो आ ही जाएगा ना, ये कैलकुलेट करना है ना? मैं केवल बेसिक्स दे रहा हूँ, आगे का काम आप कर लेना. आप 44.4% ऑफ 7623. सो इसमें भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी नो दैट 1 upon 9 is 11.11. So you almost 4 times of that. So either you can do 4 by 9 of 7623, or you can simply do this also. You can break these parts, right? 40%, then 4%, then 0.4%. So I mean 10% of this number is 762, right? So 40% will be what? 4 times of 762, right? ये हो जाएगा 8 3048. 4% will be again decimal shifting to the left side, 304, क्योंकि इसका 1/10 करेंगे तो 4% आ जाएगा, और 0.4% अगेन 1 शिफ्टिंग, सो 30. 0.4 को छोड़ सकते हो, इसको ऐड करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली. क्लियर? देख लो कितना आता है. 3382. So which is the closest option? C. Got it? These kind of shortcuts which help you in DI will help you in DI, right? 123.37% of 7213. So 100% is nothing but the numbers itself. Then I need 23% more. 20% और निकाल लेते हैं. दो तरीके से कर सकते हो. Either you can do 1/5 of this, और you can do कि इसका 10% निकालो. इसका 10% is 721. उसको डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 1442. कहीं सही किया है ना? हाँ. अभी 3.3% और चाहिए. सोचो 10% का 1/3 नहीं है. 3.33% अगर मैं निकाल दूं, दैट इज 10% निकाल के उसका 1/3. सो 10% हमारा 721 था, इसका 1/3 करोगे तो 240 आ जाएगा. एट दिस, दैट विल बी योर आंसर. तो ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये आपका हो गया 8895. ठीक है. और आंसर थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए ना, बिकॉज 37 निकालना था एक्चुअली, और मैंने 33 निकाला है. सो स्लाइटली मोर देन दिस इज ऑप्शन सी अगेन. क्लियर? कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना.
7314 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5631? 5631 है ना। तो सेम लॉजिक लगाते हैं। अब देखो क्लियरली ये इससे बड़ा है, तो 100% से ऊपर आंसर है, ये तो क्लियर ही हो गया। सो एक काम करते हैं कि इसमें से 7314 में से ये तो माइनस कर ही देते हैं, विच इज नथिंग बट 100%, और रिमेनिंग पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा। देखो वही लॉजिक शॉर्टकट हमने वैदिक से पढ़ा था। उल्टा सोचो, 7 प्लस 7, 7 में क्या ऐड करने पे 14 मिलेगा, राइट। 7 प्लस 7 इज 14 का 4 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, उसको यहाँ ऐड करेंगे, हो गया 4। 4 प्लस 7 गिव्स यू 11 अगेन, राइट। 1 ये आपका हो गया 7, 7 प्लस 6 इज 13, ये हो गया 6, 6 प्लस 1 इज 7, है ना। 1677 आएगा। अब सारे ऑप्शन 30% के आसपास हैं, राइट। चलिए तो इसका 10% निकालते हैं। इसका 10% 563, उसको 30% निकालूंगा, इंटू 3 करूंगा मतलब, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 6 18, 1 और 16 आ जाएगा। सो 30% 1690 के आसपास ले लो आप, है ना। 1690 हो गया, उससे कम आंसर है, कम है तो आंसर ये ऑप्शन आउट है, ये ऑप्शन आउट है। सो आइदर आंसर इज दिस और आंसर इज दिस। सो 0.5% और निकाल देते हैं और चेक करते हैं कितना माइनस करना है, या फिर सोच लो कि यहां से यहां जाने में 13 माइनस करना है मुझे, है ना। अब इस नंबर का हाफ करो, मतलब 1% निकालोगे, 1% 56 आता है। सो 0.5% भी 28 है, करेक्ट। और आपको 13 माइनस करना है, सो ऑब्वियसली आंसर ये नहीं हो सकता, है ना। इट हैज टू बी दिस ओनली, बिकॉज अगर आप 28 माइनस करते तब आप यहां पहुंचते, जबकि आपको ओनली 13 माइनस करना है। क्लियर? आई होप द लॉजिक इज क्लियर नाउ। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हमने दिए थे लास्ट क्लास में। आज की क्लास के बाद भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, उसको भी ट्राई करना है, करेक्ट। ठीक है, आज का स्टार्ट करते हैं, चलो। तो पहला एक क्वेश्चन हम करते हैं, कैट क्वेश्चन, एक्चुअल कैट क्वेश्चन, परसेंटेज के बेसिस पे। हमने बेसिक्स लास्ट क्लास में किया था। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई, ऑलराइट, एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो। चलिए करते हैं। सो देखो इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। इन अ जनरल इलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टीज पी एंड क्यू, केवल पी और क्यू है, द नंबर ऑफ वोट्स फॉर क्यू इंक्रीज्ड बाई 25% दिस ईयर। ओके, तो मतलब 25% कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो पहले अगर x था तो अभी x/4 इंक्रीज हो गया। नाउ इट्स बेटर नॉट टू यूज फ्रैक्शंस, है ना। तो अगर 1/4 करना है तो इससे बेटर, x से बेटर है कि आप 4x एज्यूम कर लो कि लास्ट टाइम उसको 4x मिला था, सो दिस टाइम ही विल गेट 1/4 एक्स्ट्रा, तो x और मिल जाएगा, तो बिकम्स 5x। ठीक है, तो इस बार 5x वोट्स मिले होंगे। एंड P lost this year's election with twice the margin of votes that it has won the previous general election. ठीक है, 26,000 वोट्स वैलिड वोट्स वर इन बोथ द ईयर्स। ठीक है, तो पी को कितना मिला होगा, 26,000 माइनस 4x, और इस बार मिला होगा 26,000 माइनस 5x। सो लास्ट इलेक्शन पी ने जीता था, राइट। तो जीता था तो ये बड़ा होगा इससे, तो कितने वोट से जीता होगा, 26,000 माइनस 4x माइनस 4x, इतने वोट से लास्ट टाइम पी जीता था। और इस बार हारा है, इस बार हारा है तो ये बड़ा होगा इससे, तो वो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 26,000 माइनस 5x, और ये जो है दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस, एंड यू कैन सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ x। आगे कर लोगे ना। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रॉपर अप्रोच। अब आते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट ये है, ऑप्शन इतने बढ़िया दिए हुए थे यहाँ पे। एक बात सोचो, इसने पूछा क्या है, पी को लास्ट कितने वोट्स मिले थे, राइट। एक बात तो क्लियर है कि पी वॉन द प्रीवियस इलेक्शन, तो उसके नंबर ऑफ वोट्स इसके हाफ से तो ज्यादा ही होंगे ना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो वैसे भी आउट है, बाकी को चेक कर लेते हैं। अगर पी को लास्ट टाइम 14,000 मिला था, तो इस बार 26, सॉरी क्यू को कितना मिला होगा, 26 माइनस 12, 14 सॉरी, विच इज 12,
और इस बार Q को ज्यादा मिला है 1/4, तो इसका 1/4 हो गया 3, तो हो जाएगा 15। अब ये 15 है तो 26 में से माइनस करोगे तो ये 11 बचेगा। अब यहाँ पे P कितने वोट से जीता, 2। यहाँ कितने वोट से हारा, 4। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। P लॉस्ट दिस ईयर इलेक्शन ट्वाइस द मार्जिन इट हैज वन द प्रीवियस इलेक्शन, है ना, डबल है देखो, इसका मतलब ये आंसर ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, दैट्स इट। क्लियर है? इस तरह के जुगाड़ भी करने चाहिए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सक्सेस परसेंटेज चेंज पे। ठीक है, सक्सेस परसेंटेज चेंज होता क्या है भाई, बात करते हैं। सपोज देयर इज अ नंबर 100, ठीक है, इसको हमने 10% इंक्रीज किया, सो इट विल बिकम 110। अब अगर मैं इसको वापस से इंक्रीज करूं 20% से, राइट, अब ध्यान दो, इस 10% का बेस था ये, लेकिन नाउ यहाँ मैं अगेन इंक्रीजिंग द नंबर बाय 20%, तो इस 20% का बेस 100 नहीं है, ठीक है, इसका बेस ये है। मतलब क्वेश्चन ये था, एक नंबर को मैंने 10% इंक्रीज किया एंड देन अगेन 20% इंक्रीज किया, तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? सो आंसर इज नॉट 30% फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। आंसर 30% क्यों नहीं है? बिकॉज बेस चेंज हो रहा है। इसकी बात हमने लास्ट क्लास में किया थी, है ना, कि बेस कैसे इफेक्ट पड़ता है, रिमेंबर। तो अब सोचो 20% ऑफ 110 निकालोगे तो प्लस का, यहाँ तो प्लस 10 किया था आपने, यहाँ प्लस का 22 होगा, सो इट विल बिकम 132। तो ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ? 32%, नॉट 30%, है ना, स्लाइटली मोर देन दैट, ज्यादा होगा थोड़ा सा उससे। इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, अभी इंक्रीज किया है, और भी कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको, ये तो बहुत बेसिक बात है अभी। क्लियर यहां तक? बेस चेंज होने से आंसर 32% आएगा, नॉट 30%। ठीक है, चलो, तो अब इसको सोचते हैं कि हुआ क्या, है ना। 100 था आपका, 100 बिकम्स +10, है ना, 100 +10 हो गया ये बेसिकली। अब जब इसको 20% इंक्रीज किया तो 100 का 20% आएगा 20, और इसका 20% आएगा 2, इसीलिए वो 22 इंक्रीज हुआ था, दैट्स व्हाई इट बिकम्स 132। मतलब मैं फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो हमने बेसिक 100 लॉजिक से किया, है ना। अब उसके थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देख रहे हैं कि हुआ क्या था। एक्चुअली हुआ ये था कि नंबर था 100, इसको 10% इंक्रीज किया तो 100 + 10 हो गया। अब जब 20% निकालोगे तो ब्रेक करके, पहले तो हम एक साथ निकाल रहे थे 110 का, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि 100 का 20% निकाला तो वो 20 आ गया, और 10 का 20% निकाला तो वो आ गया 2। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा 2 मिला था वो किसकी वजह से मिला था? इसकी वजह से ना। मतलब आपका ओवरऑल चेंज हुआ कितना? +10 +20 प्लस दिस 2, एंड दिस 2 इज नथिंग बट 10% ऑफ 20 और 20% ऑफ 10। हमने ये क्लास भी लास्ट क्लास में बात किया था कि x% ऑफ y या y% ऑफ x सेम होता है ना। सो एक्चुअली हुआ क्या कि +10 +20 +10% ऑफ 20, ठीक है, विच इज 32%। वी कैन मेक दिस एज अ फॉर्मूला कि अगर आपका x% और y% इंक्रीज हुआ, ठीक है, या a% + b% इंक्रीज हुआ, सो नेट परसेंटेज चेंज हो जाएगा a + b + a% ऑफ b और b% ऑफ a। बात एक ही है, दोनों की वैल्यू निकाल के यही आएगी। सो दैट गिव्स यू अ फॉर्मूला, राइट। तो दो तरीके हमने कर लिया, एक और तरीका भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नाउ वी हैव 2 अप्रोचेस फॉर दिस। एक तो आपका है सिंपल, अब 100 एज्यूम कर लो, दूसरा है ये फॉर्मूला यूज कर लो। नाउ इस फॉर्मूले को यूज करते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप डिक्रीज करवाओगे तो ए और बी की वैल्यूज नेगेटिव लेनी होंगी, ठीक है। अभी डिस्कस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, है ना, एग्जाम्पल करेंगे तो विल बी क्लियर। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डिक्रीज के लिए नेगेटिव यूज करना है, ठीक है।
फॉर 3% चेंज टेक 2 एट अ टाइम एंड देन अप्लाई रिजल्ट विद द थर्ड फॉर्मूला। मतलब 3% चेंज हो रहा है कि पहले 10% चेंज हुआ, फिर 20% चेंज हुआ, फिर से 5% चेंज हो गया। सो पहले 10 और 20 को यूज करके फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा 32%, एंड देन अगेन यूज द फॉर्मूला 32 प्लस 5 प्लस 32 इंटू 5/100। ठीक है, या फिर 100 अप्रोच लगा ही सकते हो कि 100 से आपका जब 110 हो गया था, देन अगेन इट बिकम्स 132। अब 132 को 5% इंक्रीज कर दो, तो ये अब देखो यहाँ पर वी कैन यूज दैट शॉर्टकट परसेंटेज वाला, है ना। इसका 10% हो गया 13.2, उसका आधा हो जाएगा 6.6। तो फॉर्मूले से बेटर तो ये रहा ना इस केस में, मतलब 3% इंक्रीज डिक्रीज अगर आप करोगे, इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज 100 अप्रोच, क्योंकि फॉर्मूला आपको 2 बार लगाना पड़ेगा और वो कैलकुलेशन भी ट्रिकी हो सकती है। बट वी हैव फॉर दिस मेथड वी हैव शॉर्टकट्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन, है ना, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ से क्लियर भी हो रहा होगा कि क्यों पिछली क्लास इंपॉर्टेंट है पहले करनी। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं, है ना, इट विल बी मोर क्लियर। पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन 1। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। If a number n is increased by 20% and increased value is further increased by 20%, total increase is equal to this. What is the value of the number of 99% of n? 2 बार आपने 20% इंक्रीज किया, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला। यहाँ पर a भी 20 है और b भी 20 है, सो a प्लस b प्लस ab by 100 gives you 44%। और इंक्रीज कितना गिवन है 1760, सो बेसिकली 44% ही इंक्रीज हुआ ना आपका। सो 44% ऑफ n इज इक्वल टू 1760, और आपको 99% ऑफ n निकालना है। एक पॉइंट इसमें ये भी पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये n निकालने की जरूरत नहीं है, राइट। आप 99% सीधे निकाल सकते हो कि 1% आपका हो जाएगा दिस अपॉन 44 और 99% हो जाएगा दिस अपॉन 44 इंटू 99। सिंपली यूनिटरी मेथड बेसिकली, और कुछ नहीं किया है ना। दैट गिव्स यू 3960। क्लियर? n निकाल के टाइम वेस्ट नहीं करना था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और जुगाड़, बट वो ऑप्शन स्पेसिफिक है। किसी भी नंबर का 99% अगर आप निकालोगे तो आंसर मल्टीपल ऑफ 9 होगा। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है। कैट में जनरली वर्क नहीं करता है, बट हाँ स्नैप में, IFT में इट माइट वर्क। हो सकता है कि इस तरह के एक ही ऑप्शन देखे, मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, दिमाग खुला रखो, आंखें खुली रखो, तो शायद आपको एक या दो ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो जाए कि हाँ ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मतलब अगर तुक्का मारना भी है बाई चांस, तो थोड़ा स्मार्ट तुक्का मारेंगे ना। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आप फॉर्मूला लगाओ या 100 अप्रोच लगाओ, दोनों तरीके से कर सकते हो। ट्राई करो इसको, पॉज द वीडियो, कम बैक अगेन। Okay, length of the rectangle is increased by 30% and breadth is decreased by 10%. Find the percentage change in the area. Now, can we use the shortcut or not? पहला पॉइंट तो ये, अभी तक हमने एक ही नंबर को इंक्रीज डिक्रीज किया था। अब मैं मेंसुरेशन पहुंच गया हूँ, एक रेक्टेंगल के लेंथ को इंक्रीज किया, है ना, ब्रेथ को डिक्रीज किया। तो अगर मैं लगाता हूँ उस लॉजिक से, तो मान लो एरिया था, सॉरी फॉर्मूला लगाते हैं अगर, सो आपका हो जाएगा 30 प्लस -10, क्योंकि ए यहाँ पर 30 है और बी आपका है -10, राइट। तो a प्लस बी माइनस प्लस ए बी माइनस अपॉन 100 सॉरी इज इक्वल टू 17%, है ना। अगर मैं 100 अप्रोच लगाऊं तो एरिया को मान लिया मैंने 100, सो पहले ये 130 हो जाएगा, फिर 10% जब निकालेंगे तो 10% किसका निकालेंगे, 130 का निकालेंगे, तो वो 13 आएगा, तो हो जाएगा 117। उससे भी पता लग गया कि आपका 100 बिकम्स 117, इसका मतलब इंक्रीज बाय 17%। दोनों अप्रोच क्लियर है? कौन सी बेटर है, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अभी तक आपको दोनों ही ठीक लग रही होंगी कि फॉर्मल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट इसमें भी कोई बुराई तो नहीं है, इसमें काफी काम मेंटली कर सकते हो आप, करेक्ट। बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नंबर्स आल्सो, है ना। यहाँ पे 30 10 जो है वो काफी सिंपल नंबर है, ये कुछ 22.22 टाइप्स हो जाएंगे,
ये 11.11 या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा जिसका रेसिप्रोकल आपने याद किया हुआ है, देन इट माइट नॉट बी अ बेटर अप्रोच। तब क्या करना है उसकी बात भी करेंगे बाद में, ठीक है। अब पहला पॉइंट कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ, मतलब ये आपने निकाल तो दिया, बट क्या वो अप्रोच यहाँ लगा सकते हैं हम, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। सो आप ये ध्यान दो कि ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया ये कब कब यूज कर सकते हो, वेन एवर ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मतलब एक नंबर है जो दो को मल्टीप्लाई करके आता है, एक्स को आपने ए परसेंट इंक्रीज किया, वाई को आपने बी परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज किया, और ए में इफेक्ट चाहिए आपको। सो ए में इफेक्ट कैन बी गिवन यूजिंग दिस फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, मीन्स जिन दो पे आपने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज किया है उसको मल्टीप्लाई करके अगर आंसर आता है देन यू कैन यूज द फॉर्मूला। अभी लेंथ, आपका लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है ना, दैट इज वाई वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और द 100 लॉजिक। अगर मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं आता है देन वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला, दिस कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो कहां कहां लगा सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस को मान लो ए परसेंट इंक्रीज किया, कंजम्पशन को बी परसेंट इंक्रीज किया, तो एक्सपेंडिचर अगर आपको निकालना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। स्पीड बढ़ गई ए परसेंट से या डिक्रीज हो गई, टाइम इंक्रीज और डिक्रीज बाय वी परसेंट, डिस्टेंस की परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। प्राइस बढ़ गया ए परसेंट से, क्वांटिटी सोल्ड बी परसेंट से इंक्रीज डिक्रीज हो गई, सो सेल्स या रेवेन्यू ऑफ द शॉप निकालना है आपको, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि सब मल्टीप्लाई करके आता है। तो ऐसे किसी भी केस में यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट। आया समझ, ठीक है जी, चलते हैं आगे। सो यहां पर क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा था, एरिया बराबर लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज व्हाई वी कैन यूज द लॉजिक, और आंसर आपका 17% आ गया था, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 45%, ओके, प्राइस ऑफ पेट्रोल 40% इंक्रीज हो गया, अ बॉय डिक्रीज द कंजम्पशन बाय 20%। प्राइस अगर 40% इंक्रीज हो गया तो एक बॉय ने कंजम्पशन 20% कम कर दिया, तो एक्सपेंडिचर में कितना इफेक्ट आएगा। अब देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस आपका 40% बढ़ा और कंजम्पशन आपकी 20% कम हो गई, तो -20 यूज करूंगा, और आपको एक्सपेंडिचर में इफेक्ट निकालना है, सो वी कैन यूज द फॉर्मूला 20 प्लस 10, सॉरी 20 प्लस -20, 40 प्लस -20, गलत बोल रहा हूँ, 40 और -20 है, वो आपका आ जाएगा 12%, या फिर आप 100 एनालॉजी लगा लेते। और एक बात ध्यान रखो, वेन एवर यू यूजिंग 100%, तो 100 हम किसको एज्यूम करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे पिछले केस में हमने एरिया को 100 माना था, सो इफ आई यूजिंग 100 अप्रोच, तो मैं हमेशा उसको 100 मानूंगा जो मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर आता है। तो अगर एक्सपेंडिचर को मैंने मान लिया 100, सो बिकॉज ऑफ प्राइस इंक्रीजिंग बाई 40%, इट विल बिकम 140। अब कंजम्पशन जब 20% डिक्रीज करोगे तो 140 पे डिक्रीज करोगे, तो 28 डिक्रीज हो जाएगा, तो बचेगा 112। तो एक्सपेंडिचर फाइनली कितना हो गया आपका, 12% का इंक्रीज। दोनों अप्रोच क्लियर है। मैंने भी बताया आपको तीन, थर्ड अप्रोच भी है ना, उसकी बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए अब अगर ये पूछ ले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स पेरीमीटर। नाउ कैन वी यूज दिस फॉर्मूला, आंसर इज नो। पेरीमीटर जो है आपका वो आता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके आता है, और हम वो फॉर्मूला कभी लगा सकते हैं जब वो मल्टीप्लाई करके आता हो। सो द फर्स्ट पॉइंट, आंसर इज नॉट 32%, ठीक है, वो लॉजिक नहीं लगेगा। तो आंसर क्या होगा सोचो, इसका आंसर होगा
कांट से नहीं निकाल सकते. इट विल डिपेंड ऑन एक्चुअल लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है. अभी थर्ड मेथड जो हम करेंगे, देन इट विल बी क्लियर टू यू कि क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं. ऑलराइट, अभी तो इसका आंसर है कांट से. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, है ना, विद इन अ सर्टेन लिमिट ऑब्वियसली. ओके, तो अगर प्लस करके आंसर आ रहा है तो आंसर हो गया कांट से, है ना. एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, एक्चुअल लेंथ और ब्रेड्थ के बेसिस पे आंसर माइट चेंज. ऑलराइट, डिस्कस करेंगे क्यों. इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा फ्रेम करता हूँ, रीफ्रेम करता हूँ. If a length is increased by 20% and breadth is increased by 10%, which of the following can be a percentage change in its perimeter? इनमें से कौन सा हो सकता है. अब चांस की बात चल रही है ना, हो सकता है मतलब इनमें से एक ही ऑप्शन होगा जो पॉसिबल होगा, बाकी पॉसिबल ही नहीं होंगे. करेक्ट. आप सोचते हैं क्या करना है. सी, लेंथ को मैंने 20% इंक्रीज किया था. वीडियो पॉज करके ट्राई तो कर ही लेना, है ना. और ब्रेड्थ को 10% इंक्रीज किया था. तो मुझे बेसिकली रेंज निकालनी है कि पेरीमीटर में जो चेंज है उसकी रेंज क्या है. मिनिमम कितना परसेंटेज चेंज होगा और मैक्सिमम कितना परसेंटेज चेंज होगा. ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी करेंगे. अब देखो यहां पर लेंथ में 20% इंक्रीज हुआ है. अगर मैं एक ऐसा रेक्टेंगल मान लूं जिसमें लेंथ ही लेंथ है, इट्स काइंड ऑफ अ लाइन, है ना. ठीक है, यानी कि लेंथ इज क्वाइट हाई देन द ब्रेड्थ. ब्रेड्थ नेग्लिजिबल है, 0 के बराबर है ऑलमोस्ट. तो पेरीमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एल. इस लेंथ को 2 बार ऐड कर लूंगा बेसिकली, है ना. ब्रेड्थ तो नेग्लिजिबल है. सो जो भी चेंज इसमें आएगा वही चेंज इसमें भी आएगा. एक बात याद रखना, ट्वाइस ऑफ एल का मतलब 20% नहीं हो जाता है. लेंथ को अगर 20% इंक्रीज करोगे तो ये 2L भी 20% ही इंक्रीज होगा, कहीं इसको डबल कर दो. ठीक है, सिली मिस्टेक. ऑलराइट, सो मैंने क्या किया कि अगर ऐसा रेक्टेंगल मान लिया जिसमें लेंथ इज क्वाइट हाई एंड ब्रेड्थ इज नेग्लिजिबल, सो कैन आई से पेरीमीटर में जो इंक्रीज है वो 20% ही होगा. मतलब इट कैन नॉट बी मोर देन दैट, राइट. पेरीमीटर में इंक्रीज 20% के बराबर भी नहीं हो सकता, बिकॉज यहां तो मैं नेग्लिजिबल मान रहा हूं, बट कुछ तो होगी ना, वो उससे थोड़ा तो कम हो ही जाएगा. तो एग्जैक्ट 20 भी नहीं हो सकता. तो ये ऑप्शन आउट है. ऐसे ही मैं एक ऐसी रेक्टेंगल मान लो जिसमें ब्रेड्थ ही ब्रेड्थ हो, लेंथ नहीं हो, तो उसमें जो भी इफेक्ट आएगा वो ब्रेड्थ की वजह से आएगा, विच इज नथिंग बट 10%. तो मिनिमम इंक्रीज पेरीमीटर में 10% हो सकता है, यानी इससे ऊपर ही रहेगा बेसिकली. कैन आई से पेरीमीटर में जो इंक्रीज है वो 10 और 20 के बीच में होगा स्ट्रिक्टली. तो ये ऑप्शन भी आउट है. अब 2 ऑप्शन आ गए जो दोनों के अंदर हैं, मतलब दो इस रेंज के अंदर है. तो ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ कंसेप्ट तो गड़बड़ किया हमने, है ना. इनमें से एक ही आंसर होगा, दोनों होंगे नहीं. ठीक है, तो यहां पर देखो थोड़ा कॉमन सेंस था कि एक बात बताओ, ऐसा रेक्टेंगल हमने माना जिसमें ब्रेड्थ ही ब्रेड्थ हो, लेंथ ना हो. बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ आप बोलते हो किसके हो, जो बड़ी साइड है उसी को लेंथ बोलते हो. मतलब इन अ रेक्टेंगल थ्योरेटिकली स्पीकिंग लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से बड़ी ही होगी ना. अगर आप ब्रेड्थ को लेंथ से बड़ा बना दोगे तो मैं उसको लेंथ बोलूंगा. Isn't it? क्लियर है. तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि ब्रेड्थ बहुत बड़ी हो जाए और लेंथ छोटी हो जाए. आप हद से हद लेंथ को ब्रेड्थ के बराबर कर सकते हो, और जब लेंथ को ब्रेड्थ को बराबर करोगे तो आपका आंसर इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा, विच इज 15%. तो एक्चुअली आपका आंसर 10 से ऊपर नहीं है, आपका आंसर है 15 से ऊपर. तो 15 से बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए.
तो ये भी आउट है और ये आंसर है। क्लियर है? अब ये बन गया कैट लेवल का क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट में पूछ लेना एक बार दोबारा से। चलो आगे चलते हैं। ओके अब चेंज आगे थोड़ा सा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेड्थ चेंज सो दैट एरिया रिमेन सेम। अब मैं एरिया को सेम रखना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेंथ तो मैंने इंक्रीज कर दी 20%, ब्रेड्थ में क्या चेंज करूँ कि एरिया सेम रहे, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो लेंथ को तो आपने 10% इंक्रीज 20% इंक्रीज किया, ब्रेड्थ में मान लो अब 20% का चेंज कर रहे हो, और ओवरऑल रिमेन्स सेम का मतलब ओवरऑल इफेक्ट 0 आना चाहिए, एरिया में 0% का चेंज होना चाहिए। तो बेसिकली फॉर्मूले से क्या आएगा, प्लस का 20 प्लस का बी प्लस 20 इंटू बी बाई 100, ये आएगा एरिया का चेंज, शुड बी व्हाट 0। इसको सॉल्व करके बी आ जाएगा आपका -16.6%। बट इट इज नॉट अ प्रेफरेबल अप्रोच। बहुत लेंथी है, कंफ्यूजन भी है ना, ऐसे नहीं करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो अलग बात है, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ। लेंथ को 20% इंक्रीज किया है, ब्रेड्थ को मान लो 20% चेंज किया उसने, एक डिक्रीज किया। अब इसमें माइनस भी मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बी अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। और एरिया रिमेन सेम का मतलब है कि एरिया में 0% का चेंज होना चाहिए। सो लेंथ में इतना और ब्रेड्थ में इतना करोगे तो यूजिंग फॉर्मूला इतना चेंज आएगा एरिया में, और नो चेंज का मतलब है शुड बी 0। उसको फर्दर सॉल्व करके आपका बी आएगा 16.66% नेगेटिव में, मतलब ब्रेड्थ को डिक्रीज करना पड़ेगा 16.66%, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच 100 वाली लगाता अगर मैं, तो मैं एरिया को मानता 100, बिकॉज ऑफ लेंथ इट विल बिकम 120। लेकिन आपको एरिया सेम चाहिए, मतलब आपको 120 को 100 बनाना है, तो ब्रेड्थ शुड चेंज सच दैट 120 बिकम्स 100। ब्रेड्थ को ऐसे चेंज करना है जिससे 120 100 हो जाए। तो कितना डिक्रीज करोगे 20, लेकिन बेस क्या है, बेस है 120, बिकॉज इसी को चेंज कर रहे हो आप। तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 16.66% का डिक्रीज करना पड़ेगा। इज इट अ बेटर अप्रोच और नॉट? क्योंकि इसको आप काफी हद तक मेंटली कर सकते हो, इजंट इट? सोचो, 100 बिकम्स 120, अच्छा 120 को 100 बनाना है तो 20 डिक्रीज करेंगे 120 के ऊपर, सीधे से 1/6 हो गया। और यहाँ पर वो देखो आपने जो फ्रैक्शंस याद किए थे वो काम में आएंगे। 20 अपॉन 120 इज व्हाट 1/6, विच इज नथिंग बट 16.6%। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर पहले फर्स्ट वीडियो देखना फिर सेकंड वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बिकम्स 30%, अगेन ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करेंगे एरिया सेम रहे, तो 100 बिकम्स 130, 130 को 100 बनाना है, 30 डिक्रीज करोगे 130 पर इंटू 100, एज सिंपल एज दैट। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे निकाल सकते हो, ठीक है। दो अप्रोच हो गई, थर्ड पे भी आते हैं। डन है जी। अब शॉर्टकट क्या है, चलो खींच लगा देता हूँ। आपने जब लेंथ को 20% इंक्रीज किया था तो ब्रेड्थ को आपको 16.66% कम करना पड़ा था, है ना, एरिया सेम रखने के लिए। आपने जब लेंथ को 30% इंक्रीज किया तो ब्रेड्थ को आपको 30/130 डिक्रीज करना पड़ा। अब सोचो ये कितना है 1/5, ये कितना है 1/6, ये कितना है 3/10, और ये कितना है 3/13। कुछ समझ में आ रहा है? अगर लेंथ को 1/5 इंक्रीज करोगे तो ब्रेड्थ को 1/6 डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेक द एरिया सेम। अगर लेंथ को 3/10 इंक्रीज किया तो ब्रेड्थ को 3/13 डिक्रीज करना पड़ेगा टू मेक द एरिया सेम। तो नीचे क्या हो रहा है, ऊपर तो सेम नंबर ही है, न्यूमरेटर इज सेम, और नीचे दिस इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टू, इजंट इट? मतलब
अगर x को आपने a बाई बी से इंक्रीज किया तो y को, और ये सेम चाहिए आपको, तो y को a अपॉन a प्लस बी से डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इससे क्वेश्चन बिल्कुल मेंटली सॉल्व हो सकता है। सोचो ये 40% होता, 40% कितना है, 2/5। 2/5 इंक्रीज करोगे तो ब्रेथ को 2/7 डिक्रीज करना पड़ेगा। 1/7 का डबल कर देना, 28.56 इज योर आंसर। मतलब ऐसे परसेंटेज जिनके फ्रैक्शन आपको याद हैं, वो तो आप ऐसे ही स्ट्रेट अवे कर सकते हो बिना कुछ लॉजिक लगाए, सीधे फॉर्मूला लगाना, यू विल गेट योर आंसर। ओके जी। और इसका उल्टा प्रोसेस, जैसे मान लो 20% डिक्रीज कर दिया होता तो 100 विल बिकम 120, सॉरी 80। 80 को 100 बनाना है तो 20 का डिक्री इंक्रीज करेंगे ओवर 80, दैट इज 1/4। तो अगर 1/5 डिक्रीज कर दिया है तो 1/4 इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये कैसे आया, माइनस करके आ रहा, देखो। ऐसे सोचो यहाँ पे 30% वाले केस में क्या होता, अगर 30% डिक्रीज करते सो 100 बिकम 70। 70 को वापस 100 बनाना है तो 30 इंक्रीज करोगे 70 के ऊपर तो 3/7 आएगा। सो 3/10 से कितना, 10 से कितना बन रहा है, 3/7 बन रहा है। इस बार माइनस हो रहा है, देखो 10 माइनस 3 इज 7। मतलब अगर आपको x को a अपॉन बी से डिक्रीज कर दिया होता तो a अपॉन बी माइनस ए इंक्रीज करना पड़ता एरिया सेम रखने के लिए, मतलब प्रोडक्ट सेम रखने के लिए। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट आप लगा सकते हो, पर ये तभी वैलिड होगा जब प्रोडक्ट सेम है। नहीं है तो फिर 100 अप्रोच बेटर है। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा देखना इसको रिवाइंड करके, फिर भी क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेम लॉजिक देखो, 40% इंक्रीज किया है तो 2/5 इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज किया है तो 2/5 डिक्रीज किया है तो a अपॉन बी माइनस ए करेंगे तो 2/5 माइनस 2 दैट इज 3 का इंक्रीज करना पड़ेगा, 66.6%। इससे तो यही जाएगा आपका। ठीक, ये लॉजिक लगाया। ओके, 66.6 आपका आंसर। नाउ अगर एरिया सेम नहीं हो तो length of a rectangle increase by 20%, by what percent should the breadth change so that area increases by just 10%? तो इस बार एरिया कुछ बढ़ रहा है या कम भी हो सकता था, इट्स अप टू यू। तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो लेंथ को आपने 20% इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को मान लो बी किया, तो यूजिंग फॉर्मूला प्लस बी बाई ए बी बाई 100 शुड बी इक्वल टू व्हाट नाउ, एरिया शुड इंक्रीज बाय 10%। तो फॉर्मूला लगा के इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम, इज इक्वल टू 10। पिछली बार 0 किया था क्योंकि नो चेंज था, इस बार 10% इंक्रीज तो 10 कर देंगे। अगेन सॉल्व इट, गेट योर आंसर। ठीक है, बट अगेन मैंने जैसे पहले बताया था कि परसेंटेज, सॉरी फॉर्मूले से बेटर है 100 अप्रोच। इस बार हम क्या करते, एरिया मानते 100, बिकॉज ऑफ लेंथ इट विल बिकम 120, बट एक्चुअली 10% इंक्रीज हुआ है एरिया, मतलब एक्चुअली 110 होना चाहिए। सो ब्रेथ should change such that 120 becomes 110। पिछली बार ब्रेथ क्या किस तरह चेंज हो रहा था कि 120 को 0 बना रहा था, अभी मुझे कितना बनाना है, 110 बनाना है। सो ब्रेथ शुड चेंज सच दैट 120 110 बन जाए, तो 10 का डिक्रीज करेंगे ओवर 120 into 100 which is 8.33%. Still this approach is better. 100 अप्रोच ऐसे केसेस में हमेशा बेटर होती है एज फार एज कैलकुलेशन इज इजी। करेक्ट है? आगे चलें। ऑलराइट,
अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये जो थर्ड बात मैं बार बार कर रहा था कि थर्ड अप्रोच वो ये है। पहली बात समझते हैं ये होता क्या है। 10% इफ आई इंक्रीज, राइट, योर नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x प्लस 10% ऑफ x, है ना। इसको मैं कैसे कैसे ले सकता हूँ? इसको मैं ले सकता हूँ कि ये आपका 100% ऑफ x प्लस 10% ऑफ x और 110% ऑफ x। मतलब इसको लॉजिकली क्लिक हो रहा है ना ये देखो। अब किसी नंबर को 10% इंक्रीज किया, वो नंबर खुद का 100% तो है ही, 10% और ले आया। सो कैन आई से इट विल बिकम 110% ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। और अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिख दूं तो दिस इज नथिंग बट x प्लस 1/10 ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.1x और 11/10x। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1.1 बोल दो या 11/10 बोल दो, एक ही बात है, दोनों सही है अपनी जगह पे। और दोनों में से किसका यूज करना है, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर्स। ठीक है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तो इट विल बी क्लियर कि किसका यूज बेटर है किस सिनेरियो में, है ना। क्लियर है यहां तक? तो एक नंबर को अगर आप 10% इंक्रीज करोगे तो इट विल बिकम 110%। या मैं उसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि यू नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर बाई 1.1 और 11/10। किसी नंबर को 10% इंक्रीज करना है तो उस नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर 20% इंक्रीज करना है तो इट विल बिकम 120%। 120% का मतलब कितना हो गया, 1.2 और 6/5। ठीक। 25% इंक्रीज मीन्स इट विल बिकम 125% और 1.25। और इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन ये कितना बनेगा, 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4। नाउ थिंक, कंपेयर दीज टू। इन दोनों में से इसको यूज करना बेटर रहेगा हमेशा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करना आसान है इस केसेस में, है ना। अदरवाइज 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी तक दोनों बेटर थे। 5% इंक्रीज करना मतलब इट विल बिकम 105%। और 1 प्लस 5/100 मतलब 1/20। तो या तो 1.05 बोलो या 1 प्लस 1/20 का मतलब हो गया 21/20। अगेन दिस इज बेटर। और जब देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहा हो बार बार, 2 या 3 या 4 बार, तो हमेशा यही बेटर होगा, क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ तो कैंसिल हो ही जाएगा चेन रूल के अंदर, है ना। 15% का मतलब 115% हो जाएगा और 1.15 और 1 प्लस 3/20, 15/100 मतलब 3/20 बिकम्स 23/20। ये बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, राइट। 30% इंक्रीज का मतलब 130% हो जाएगा और 1.3 और 13/10, इनमें किसी को भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। 12% इंक्रीज मतलब 112% और 1.12। ठीक है, या फिर 1 प्लस 12/100 का मतलब हो गया 4 3 12 25, दैट इज 28/25। इस केस में तो मुझे लग रहा है यही बेटर है। दिख रहा है ना, देखो हर सिनेरियो में बात चेंज हो जाती है। कौन सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है, दैट यू नीड टू डिसाइड, और वो प्रैक्टिस से आएगा। बट आई थिंक लॉजिक इज क्लियर कि कैसे कन्वर्ट करना है ना। और एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। अगर ये जो इंक्रीज है आपका इस तरह का आ जाए, देन 11.11% इंक्रीज का मतलब इट विल बिकम 111.11%। 9.09% इंक्रीज का मतलब इट विल बिकम 109.09%। इट बिकम 108.33%। इट विल बिकम 107.14%। ये तो काफी बकवास हो गया, मतलब ये तो इसको कैलकुलेशन करने में तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है,
तो अब देखो इस केस में फ्रैक्शन बेटर है कि नहीं। ये कितना था आपका 1/9। सो बेसिकली 1/1 + 9 करना है ना आपको, इंक्रीज तो करना ही है ना। 1 + 1/9 का मतलब कितना हो गया 10/9। सो अभी इन सच सिनेरियो द बेस्ट अप्रोच इज टू यूज फ्रैक्शंस। इसका मतलब 1 + 1/11, तो विल मल्टीप्लाई बाय 12/11। इसका मतलब 1 + 1/12, सो 13/12 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1 + 1/14, तो 15/14। 1 + 6.25 1/16 याद करवाया था फर्स्ट क्लास में, याद है, तो 17/16 हो जाएगा। इनसे मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। क्वेश्चन क्या था, अगर आपको एक नंबर को x को 6.25% से इंक्रीज करना है, सो इट विल बिकम 17/16x, एज सिंपल एज दैट। करेक्ट। 7.7% 1/13 होता है, तो 1 + 1/13 कर देंगे तो बन जाएगा 14/13। 5.88 होता है 1/17, याद करवाया था फर्स्ट क्लास में, राइट, प्रीवियस क्लास में, तो 18/17 हो जाएगा। इस तरह का और कोई भी है ना जो हमने इतने सारे याद किए थे फ्रैक्शंस। इन दैट केस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा वाला बेटर है, जो फ्रैक्शन वाला है। करेक्ट है। चलिए आगे चलें। अगर हैवी लग रहा हो तो यू कैन रिवाइज द फर्स्ट पार्ट अगेन एंड अगेन एंड देन रिज्यूम टू द वीडियो अगेन। करेक्ट। अब डिक्रीज की बात कर लेते हैं। 10% डिक्रीज करने का मतलब है इट विल बिकम 90%। कम हो गया ना इस बार, 100 से कम हो गया 10%, तो 90 हो गया। 0.9 बोल सकते हो या 9/10 बोल सकते हो। ठीक है। 20% डिक्रीज का मतलब 80% हो जाएगा। 0.8 बोल सकते हो या 4/5 बोल सकते हो। 25% डिक्रीज मतलब 75% हो जाना। 0.75 बोल सकते हो या 3/4 बोल सकते हो। बेटर ये वाला है ऑब्वियसली। 1/4 का डिक्रीज हो गया तो 1 - 1/4 नाउ बिकम्स 3/4, है ना। 5% डिक्रीज का मतलब इट विल बिकम 95%। 0.95 ये तो बेकार ही है अब। या 1 - 1/20 इज 19/20, बेटर है ना। 15% डिक्रीज मतलब 85% हो जाना और 0.85 हो जाना। इसका मतलब 1 - 3/20 हो जाना, मतलब 17/20 हो जाना। ठीक है। 30% डिक्रीज मतलब 70% हो जाना और 0.7 और 7/10। 12% डिक्रीज का मतलब इट विल बिकम 88% और 0.88 और 1 माइनस कितना आया था 3/25, बेसिकली 22/25। ना इट विल डिपेंड कौन सा बेटर है, नंबर पे डिपेंड करेगा, है ना। 88% निकालना आसान है तो वो निकाल देना, क्योंकि 88% निकालने के लिए मैं शॉर्टकट लगा सकता हूँ। पहले 10% डिक्रीज फिर 2% डिक्रीज, जो हमने पिछली क्लास में किया था शॉर्टकट मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जगह पर। ठीक है। पूरा सब कुछ लिंक्ड है देखो, है ना, इसलिए फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट है करनी। ठीक है जी, आगे चलें। ऐसी फ्रैक्शन वाली बात कर लेते हैं। ये आपका अगेन 1/9 था, तो ये बात करनी तो बेकार है यहाँ पे, है ना। सीधे यहाँ पे आते हैं। इसका मतलब 1 - 1/9 करना, तो 8/9 हो जाएगा। इसका मतलब 1 - 1/11 करना, तो 10/11 हो जाना। 1 - 1/12 is 11/12. 1 - 1/14 is 13/14. 1 - 1/16 is 15/16. 1 - 1/13 is 12/13. 1 - 1/17 is 16/17. क्लियर। याद रटना नहीं है, है ना, रटना मत, कॉन्सेप्ट समझो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और प्रैक्टिस में लाओगे तो इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है। चलो। सो अब थर्ड अप्रोच जो हम बात कर रहे थे,
सेम क्वेश्चन वापस ले रहा हूँ, लेंथ इज इंक्रीज बाय 30%, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। तो अभी मुझे थर्ड अप्रोच से कैसे करना है, 1.3 इंटू 0.9 बिकम्स 1.17, और इसका मतलब क्या है, 17% का इंक्रीज। मल्टीप्लाई फैक्टर से वापस भी आना सोचना चाहिए। 1.17 का मतलब है 117%, मतलब 17% इंक्रीज। अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.87 आ गया, इसका मतलब है 87% हो जाना, मतलब है 13% का डिक्रीज। अगर आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.564 आ गया, इसका मतलब है 56.4 हो जाना, ठीक है, मतलब 43.6% का डिक्रीज। 100 से माइनस कर दो बेसिकली, गेटिंग इट? if your multiplying factor is MF is multiplying factor, ठीक है ना। 0.246, इसका मतलब है इट विल बिकम 24.6%। डिक्रीज कितना हुआ, पॉइंट का 457। 100 में से माइनस कर रहा हूँ सिंपली, क्योंकि तो यहाँ पे कन्वर्ट करना मुश्किल लगता है ना, लेकिन 100 जैसी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे इट इज इजी टू कैच। डन है, चले आगे। देखो यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ऐसे केसेस में तो मैं पक्का ही फ्रैक्शन वाला केस यूज करूंगा। प्राइस बढ़ गया 44.44%, इसका मतलब होता है 4/9। 23.1% का मतलब हो गया 3 इंटू 7.7, और 7.7 कितना है, 1/13, है ना। तो 3/13 इंक्रीज होना, डिक्रीज सॉरी। तो 4/9 का इंक्रीज हुआ और 3/13 का डिक्रीज हुआ। सो 4/9 का इंक्रीज होने का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1 प्लस दिस, दैट इज 13/9 इंटू, इसका मतलब हो गया 1 माइनस 3/13, मतलब 10/13। आंसर आ गया 10/9, मतलब 1 प्लस 1/9, प्लस का मतलब इंक्रीज हुआ कितना, 1/9, विच इज 11.11%, एंड दैट्स योर आंसर। गॉट इट? इस केस में देखो फॉर्मूला बेकार है, 100 बेकार है, बेस्ट अप्रोच कौन सी है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और वो भी फ्रैक्शन वाला। क्लियर है? तो 3 अप्रोचेस हमने कर ली, 100, फॉर्मूला एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कौन सा कब अप्लाई करना है वो पूरी तरह से सिचुएशन और नंबर्स पे डिपेंड करेगा, तो उसी का आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब इनिशियली आप क्या कर सकते हो कि हर क्वेश्चन में तीनों अप्रोच लगा के देखना, एंड देन यू सिंपली थॉट कि भैया कौन सा बेटर लग रहा है, और इवेंचुअली जब नए क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर ज़्यादा आसानी होगी पकड़ने में कि कौन सा अप्रोच से करना है उसको। सही है, चलो आगे चलते हैं। ओके, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेड्थ चेंज सो दैट एरिया रिमेन सेम। तो इसको मैं मल्टीप्लाई फैक्टर से भी कर सकता था। कैसे? लेंथ बिकम्स 1.2 L, हाँ या सीधे सोचते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एरिया, ये हो गया 1.2, ये मुझे निकालना है, और इस बार अगर एरिया सेम रहा है तो मल्टीप्लाई फैक्टर का मतलब होता है 1। तो लेंथ का मल्टीप्लाई फैक्टर 1.2 हो गया, ब्रेड्थ का निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा 1, या आप इसको 6/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हो, एक्स आपका आ जाएगा 5/6। तो इसका 5/6 आने का मतलब है 1 माइनस 1/6 होना, मतलब डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, 1/6, मतलब 16.6%। ठीक है, चलो अब वो वाली बात भी कर लेते हैं कि वो जो लॉजिक है वो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में ही क्यों लगता है। तो सोचते हैं इस पे। मान लीजिए लेंथ को आपने 20% इंक्रीज किया था, ब्रेड्थ को आपने 10% इंक्रीज किया था, सो एल बिकम्स कितना, 1.2 L, और ये 1.1 B। तो पहले एरिया था L इंटू बी, अभी कितना हो गया 1.2 L इंटू 1.1 B।
इंक्रीज कितना हुआ, दिस माइनस दिस ओवर ओरिजिनल एरिया विच इज दिस इंटू 100। अब इसमें एल और बी कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, आंसर बचेगा 1.2 इंटू 1.1 माइनस 1/1 इंटू 100। तो आप यहां पर देखो कि बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहा था इसीलिए वो कैंसिल हो गया ना ऊपर नीचे, तो आपका एरिया का आंसर हमेशा फिक्स आएगा 32%, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, एरिया हमेशा 32% ही इंक्रीज होगा। पेरीमीटर वाले केस में क्या होता, ओरिजिनल पैरामीटर आपका था ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, नया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 1.2 एल प्लस 1.1 बी अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 करोगे तो एल और बी कैंसिल ही नहीं होगा, इसीलिए आपका आंसर विल डिपेंड ऑन एक्चुअल वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। एक्चुअल वैल्यू ना भी पता हो, अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो भी पता है देन यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, पेरीमीटर वाले केस में अगर आपको लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो पता होगा तब निकाल सकते हो एग्जैक्ट वैल्यू, अदरवाइज आंसर है कांट से, या फिर रेंज निकाल सकते हो जैसे हमने पहले निकाली। ऑलराइट, ओके जी, ये वाला काम देखो कर सकते हैं। लेंथ इंक्रीज बाय 20% का मतलब 1/2 हो गया, या फ्रैक्शन ले लेते हैं 6/5 इंटू ब्रेड्थ का मान लिया x शुड बी इक्वल टू व्हाट, एरिया इंक्रीज बाय 10% का मतलब 1 + 1/10 11/10। तो x कितना आ गया आपके पास, x आ जाएगा 11/12 का मतलब 1 - 1/12, मतलब इसका डिक्रीज, इसका मतलब 8.33% डिक्रीज। ठीक है, और डिक्रीज होगा ये। तो ये अप्रोच मुश्किल तो नहीं है, मतलब आप ऐसे केस में मैंने अभी तक क्या बताया था कि आपको 100 वाला अप्रोच बेस्ट है। नाउ दिस इज ऑल्सो ओके, इसमें भी फाइट नहीं आ रही है ना, और स्पेशली अगर परसेंटेज वैसी ही आ जाए 44.4%, 11.11%, 9.09%, तब तो पक्का ही फ्रैक्शन वाला बेटर है। जैसे मान लो लेंथ को मैं 11.11% इंक्रीज कर दूं, ब्रेड्थ को कितना करूं कि एरिया लेट्स से 8.33% डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब हो गया 1/9, इंक्रीज करने का मतलब 10/9 हो जाना, इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1/12 का डिक्रीज का मतलब इट विल बिकम 11/12। तो बी कितना आ जाएगा, हम निकाल सकते हैं आप, तो बी आपका आ जाएगा 33/40। इसका मतलब 1 - 7/40, तो 7/40 डिक्रीज करना पड़ेगा, 7/40 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, दैट्स योर आंसर 35/2 17.5% का डिक्रीज करना पड़ेगा ब्रेड्थ के अंदर टू मेक द इफेक्ट लाइक दिस। क्लियर है, कैलकुलेशन चेक करें ना, कुछ गड़बड़ नहीं की हो। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपके पास, है ना। तो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, एक ही आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लेकिन टाइप किया हुआ है, तो एक काम करना, वीडियो यहीं पॉज कर देना, इसको ट्राई करना, फिर आगे चलना। ठीक है, तो वो होमवर्क भी हो जाएगा और आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और 3 क्वेश्चन ये हैं, तो ये 4 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हो गए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। और नेक्स्ट क्लास में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज ही करेंगे अभी आगे बढ़ने से पहले, विल डू सम एक्चुअल कैट क्वेश्चंस। सही है जी, चलो तो इतना हमने आज किया। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो फल दो। एंड डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ओके, चलो गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, विल सी यू अगेन।